एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। এপস্টিন ফাইলের চাবি ট্রাম্পের হাতে, তাই ট্রাম্পের কথায় মোদি চলছেন বলে দাবি করলেন রাহুল গান্ধী। বাংলার মাটিতে এপস্টিন ফাইল প্রসঙ্গে মোদিকে তীব্র সমালোচনা করলেন রাহুল গান্ধী। आजकल आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा है? देखा है? हवा निकल गई है। आप देखो बंगाल में घूम रहे हैं, उनका चेहरा देखो ठीक से। वो मेरी आंख में आंख नहीं मिला सकते हैं। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता। दम नहीं है आदमी में। नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। ট্রাম্পকে স্যার বলে সম্বোধন করেন মোদি, আর ট্রাম্প সারাদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেন। দাবি রাহুল গান্ধীর। হুমকি দেন 2 মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারেন, এমন মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন রাহুল। দেশে বিভাজনের রাজনীতি বাড়িয়ে আরএসএস বিজেপি ভারতের সংবিধানকে দুর্বল করতে চাইছে। বিধানসভা ভোটে প্রথমবার বাংলায় নির্বাচনী সভা করতে এসে এমনটাই দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। এদিনের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্পর্কে একাধিক তীব্র মন্তব্য করেন রাহুল গান্ধী। তার দাবি, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা হলে প্রধানমন্ত্রী তাকে স্যার বলে সম্বোধন করেন। ট্রাম্প সারাদিন প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেন। হুমকি দেন 2 মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কেরিয়ার শেষ করে দিতে পারেন, এমন মন্তব্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি। আর প্রধানমন্ত্রী মোদী তাকে আলিঙ্গন করেন। তিনি এপস্টিনের কারণে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বন্দী, এমন অভিযোগও করেছেন রাহুল গান্ধী। এদিকে ভারতে মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু, বি.আর. আম্বেদকররা কখনো কারো কাছে মাথা নত করেননি, আর তার জন্য 15 বছর জেলে খেটেছেন, কিন্তু বর্ষতা স্বীকার করেননি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী 24 ঘন্টা বিভাজনমূলক রাজনীতি করছেন বলে অভিযোগ রাহুল গান্ধী। হিন্দু মুসলমানের নামে রাজনীতি করেন বলেও দাবি করেন তিনি। কংগ্রেস এইসব করে না, কংগ্রেসের নীতি সবাইকে নিয়ে চলা বলে মন্তব্য রাহুল গান্ধী। এদিন রাহুল গান্ধী সংসদের একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেছেন। রাহুল বলেন, সংসদে আমি বক্তব্য রাখছিলাম, এপস্টিন থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে কথা বলছিলাম। আপনারা সবাই এপস্টিনের নাম শুনেছেন। নরেন্দ্র মোদী বলেন তার 56 ইঞ্চির ছাতি, কিন্তু আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন, এমনটাই দাবি তার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নির্দেশ দিয়ে আমাকে থামাতে বলেন। বারবার আমাকে থামাবার চেষ্টা হলো, শেষ পর্যন্ত না পেরে সংসদ ছাড়লেন, এমনটাও উল্লেখ করেন রাহুল গান্ধী। রাহুলের আরও দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। আমেরিকার সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছেন তাতে বিজেপির ক্ষতি হবে না, কিন্তু দেশের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে বলে দাবি রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, আগেই বলেছি ট্রাম্প মোদীকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এমন মন্তব্য করেছেন। তাই ট্রাম্পের আমেরিকার কাছে প্রধানমন্ত্রী দেশটাকে সমঝোতার মাধ্যমে এগিয়ে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। ভারতে কৃষি বাজার দেশের জন্য খুলে দিয়েছেন। চুক্তির পর আমেরিকার কৃষকরা ভারতে তাদের সামগ্রী বিক্রি করতে পারবেন। ভারতে কৃষি জমি ছোট, প্রযুক্তির ব্যবহার কম, আমেরিকায় উল্টো। তাই ভারতের কৃষকদের ক্ষতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন রাহুল গান্ধী। जो यूएस डील किया नरेंद्र मोदी ने, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो समझौता किया, उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। अच्छा, आप लोगों ने एप्स्टीन का नाम सुना है? आप जानते हो एप्स्टीन कौन है? जानते हो ना? एप्स्टीन फाइल्स के बारे में जानते हो? थोड़ा बता देता हूं, नरेंद्र मोदी जी भी सुन लें। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिका में 35 लाख फाइलें बंद पड़ी हैं। उसमें हिंदुस्तान के मंत्रियों का नाम, बीजेपी के नेताओं का नाम और नरेंद्र मोदी जी भी उसमें फंसे पड़े हुए हैं। एप्स्टीन फाइल्स की चाबी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कहता है मोदी जी जंप मारो, तो नरेंद्र मोदी जंप मारता है। उससे कहता है उधर बैठ जाओ, तो नरेंद्र मोदी उधर बैठ जाता है, क्योंकि कंट्रोलर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। भाइयों और बहनों, बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने एक नया राजनीतिक सिस्टम निकाला था। आइडिया क्या था कि पूरा का पूरा फाइनेंस
पार्टी का जो पैसा है पूरा का पूरा एक जगह रख दो। कौन सी जगह? अदानी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को अदानी कंपनी से जोड़ दिया। अदानी के लिए बीजेपी काम करवाती है और अदानी पैसा, सपोर्ट, मीडिया, फाइनेंस सारा का सारा बीजेपी को देती है। ये इनका सिस्टम है। तो सचमुच में ये अदानी कंपनी नहीं है, इसका नाम मोदानी कंपनी होना चाहिए। ये आधी अदानी की है और आधी ये मोदी की है। अब हुआ क्या? इन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंस इस कंपनी में डाल दिया और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने कंपनी को पकड़ लिया। अदानी पर अमेरिका में केस लगा दिया। आप पता नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, अदानी के पास बहुत पैसा हो, अदानी बहुत अमीर हो, मगर अदानी हिंदुस्तान से आज बाहर नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर अदानी बाहर जाएगा तो अमेरिका उसको पकड़ के अमेरिका ले जाएगा और फिर मोदी का जो गुब्बारा बनाया गया है उसमें जो 10-15 साल से गैस भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है, वो गुब्बारा फटाक से फटेगा। तो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब पार्लियामेंट की बात, लोकसभा में डिबेट चल रही, मेरा भाषण शुरू होता है, नरेंद्र मोदी देश से कहता है मेरी 56 इंच की छाती है। सुना आपने? 56 इंच की छाती है। डिबेट शुरू होती है, मैं डिबेट शुरू करता हूं और मैंने वहां पे काम शुरू कर दिया। जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं वो मैंने शुरू कर दिया। एप्स्टीन, अदानी, और मेरे पास थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको अभी बताया नहीं। मोदी जी की हवा निकल गई। अमित शाह से कहते हैं इसको चुप करवाओ, इसको चुप करवाओ। वो पूरे इशारे चल रहे हैं, मैं रुका नहीं। एक बार रोका, नहीं रुका, दूसरी बार रोका, नहीं रुका, तीसरी बार रोका, नहीं रुका, और फिर नरेंद्र मोदी जी उठे, टीवी पे आप देखो, उठे और पार्लियामेंट, लोकसभा से बाहर निकल के भाग गए। 56 इंच की छाती होगी मगर आंख में आंख नहीं मिला सकता, दम नहीं है आदमी में। और हिंदुस्तान को भयंकर धोखा दिया नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका के साथ जो इन्होंने समझौता किया है उसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपको होगा, देश की जनता को होगा, बंगाल को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों को होगा, छोटे व्यापारियों को होगा। देश को बेच दिया है। मैं फिर से बोलता हूं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने कंट्रोल किया और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेच दिया। समझौते के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के कृषि सेक्टर को अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। डील के बाद अमेरिका के किसान अपना माल, अपनी दाल, अपना सोया, अपना कपास, अपने अखरोट, बादाम, अपने फल हिंदुस्तान में बेच पाएंगे। अब आप देखिए, हिंदुस्तान में खेत छोटे होते हैं, मैकेनाइजेशन कम है, हमारे किसानों के पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं। अमेरिका में 1000, 10,000, 50,000 एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, पूरी मशीनरी से काम होता है। आप ही सोचिए अगर उनके किसानों का माल हिंदुस्तान में बिकेगा, हमारे सारे के सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे।